So Mushtaq, very warm welcome to all of my dear friends and students with another video lecture regarding soaps and detergents. In the previous video we had discussed about the preparation and the structure of soap. So today we are discussing about the mechanism of cleansing action of soap, right? Before discussing its mechanism, let me tell you something about the nature of soaps, right? Soaps are basic in nature. Why they are basic in nature? Because they are formed by the combination of weak acid, that is acetic acid, and that of strong base, that is sodium hydroxide. So it is a salt of weak acid and strong base. So we can say your soaps, they are basic in nature and they turn your red litmus paper into blue, right? So I can write the nature of soaps. If I will talk of nature of soaps, your soaps, they are basic in nature. Soaps are basic in nature because they are formed by the combination of weak acid आप इसमें आपका होता है जैसे एसिटिक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. हमने कल के वीडियो में बात की थी. Mostly we get two main types of raw materials for preparation of soap. One is your carboxylic acid, that is acetic acid, and second is the strong alkali, right? Strong base, that will be sodium hydroxide or it can be potassium hydroxide. So your soaps, they are basic in nature because they are formed by the combination of weak acid and strong base. So when they are basic in nature, they will turn your red litmus into blue, right? So they turn red litmus to blue. You're getting? तो इसका जो pH होगा सोप का, that will be greater than 7, right? तो ये हो गई बात किसकी? नेचर ऑफ सोप की. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप. इसको बेटा आप ध्यान से देखिएगा, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप को. क्लींजिंग एक्शन, अगर मैं इसके मैकेनिज्म की बात करूं, आपको मैंने कल कहा था हमारे सोप मॉलिक्यूल में दो पार्ट्स होते हैं. एक आपको होता है पोलर पार्ट, दूसरा आपको होता है नॉन पोलर पार्ट, ठीक है ना. Now what is our motto? We have to remove the dirt, or we can say dust or grease or oil from any cloth or fabric, right? So for what we have to do is, we will first see the mechanism, how it removes the dirt which is oily in nature from the cloth, or we can say from any fabric, right? आपके पास कोई कपड़ा है ऐसे, right? तो इन कपड़ों में अगर आप देखेंगे, हमारे पास माइक्रो लेवल पे इन्हें बहुत सारे पोर्स होते हैं. लेट अस सपोज हमारे पास यहाँ पर इस वाले पोर में कोई ऑयल ड्रॉपलेट या कोई डर्ट या कोई डस्ट पार्टिकल या कोई ग्रीस पार्टिकल एंट्रैप हुआ है, ठीक है ना. Now what I have to do is I have to remove this, right? So this is your oil droplet which is entrapped in the cloth. Now what I have to do is I have to remove this, right? तो इसको रिमूव करने के लिए पहले हमें सोप का स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है ना. Now first what I will do is I will take this oil droplet, जिसको मुझे रिमूव करना है, ठीक है ना. तो मैं यहाँ पर एक आपके पास एक ऑयल ड्रॉपलेट बनाऊंगा लाइक दिस. Let us suppose this is my oil droplet. Then what I have to do is, this is your oil droplet, right? Then this oil droplet, this is lipophilic in nature. This is this is fat loving, right? कल मैंने आपको कहा था जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ सोप पढ़ा था, जो आपका सोप है उसमें दो पार्ट्स होते हैं. एक आपका होता है दिस लाइपोफोबिक पार्ट, दूसरा आपका होता है लाइपोफिलिक पार्ट, या एक आपका होता है हाइड्रोफिलिक, दूसरा आपका होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट. जो हाइड्रोफोबिक टेल होगी which is lipophilic in nature, है ना, that will first attack this oil droplet. तो मैकेनिज्म पहले क्या होगा, जो आपके पास ऑयल ड्रॉपलेट है जो एंट्रैप हुआ है किसी क्लॉथ में, ठीक है ना, इस पे कौन अटैक करेगा,
इस पे आपका सोप का कौन सा पार्ट अटैक करेगा, दैट विल बी लाइपोफिलिक इन नेचर और दैट मींस हाइड्रोफोबिक इन नेचर, दैट इज नॉन पोलर पार्ट। यानी जो आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है ना सोप में, दैट विल अटैक फर्स्ट ऑन द ऑयल ड्रॉपलेट। So I will make first the hydrophobic tail, right, of the soap molecule, like this. Here you are seeing that this hydrocarbon part or hydrophobic tail, or we can say this so I am drawing the hydrocarbon part, a long chain of carboxylic acids. So what is this? This is your hydrophobic tail, or we can say lipophilic tail, right, of the soap molecule, which gets attached with the oil droplet, which has lipophilic in nature, right? So this is your hydrophobic tail. Now तो देखिए यहाँ पर जो आपके सोप मॉलिक्यूल्स है ना, जब मैं सोप सॉल्यूशन को वाटर में डालता हूँ ना, जो आपके पास ये सोप मॉलिक्यूल है, ये इस तरीके से अपने आपको अलाइन, इस तरीके से अपने आपको अरेंज करता है कि जो इसका हाइड्रोफोबिक टेल होगा, इट विल फर्स्ट कम क्लोजर टू द ऑयल ड्रॉपलेट, और जो उसका दूसरा पार्ट होता है दैट इज योर पोलर पार्ट। ये हुई बात नॉन पोलर पार्ट की, ठीक है ना। नाउ कम टू द पोलर पार्ट, दैट इज your hydrophilic head, right, or ionic part we can say, that that is hydrophilic in nature, that is lipophobic in nature, that will interact with the water molecules, right। वो आपको पता है कि वो that is water loving, right, water attracting, that what's water attracting, so it will dissolve in the water to form a covalent bond। So this one, now I am drawing the head, that is hydrophilic head of the soap molecule, and in this hydrophilic part what we have this we also call it as ionic part, right, this is your COO negative Na positive, right। So here also COO negative Na positive, here also I am drawing the hydrophilic part of the soap molecule, you're getting। So I am drawing here the ionic part of the soap molecule, you are seeing, you also draw with me CO negative Na positive, here also CO negative Na positive। So what is this? What does this represent? This represents your hydrophilic head, right, or we can say lipophobic, जिसको फोबिया है लिपिड से, which is water loving, right। तो अगर आप देखेंगे ये जो आपका आयनिक पार्ट है, that remains that forms this ionic bond with the water molecule। तो यहाँ से आपके पास क्या है, यहाँ से आपके पास water molecules attach हैं like this, right, you are getting water molecules attaching, so many water molecules attaching with this ionic part, right। So this is your ionic part, or we can say polar part, and this one is your hydrocarbon part, right। And now if I will talk about the mechanism, what happens is, देखिए हमारे पास सोप में क्या होगा, जो आपके पास नॉन पोलर एंड होगा ना, that will attach with the oil droplet, और जो आपका पोलर एंड होगा that will attach with the water molecules। तो अगर हम देखेंगे, अगर हम बहुत सारे सोप मॉलिक्यूल्स के वाटर में डिजॉल्व करेंगे ना, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर इसी किस्म का ये जो आप देख रहे हो ना, इसी किस्म का एक एग्रीगेट बन जाता है, जिसकी जो शेप अगर आप देखेंगे समवट स्फेरिकल शेप इसकी है ना, you are seeing its shape is somewhat spherical। तो इसको हम कहते हैं बेटा, इसको हम केमिस्ट्री में ये जो आपके पास एग्रीगेट बन गया ना सोप मॉलिक्यूल्स का, इसको हम कहते हैं माइसल फॉर्मेशन, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं माइसल फॉर्मेशन, वी कॉल इट एज माइसल फॉर्मेशन।
तो आपने क्या किया, यूं आपने बहुत सारे सोप मॉलिक्यूल्स किस में डाल दिए, वाटर में, तो क्या हुआ उससे बहुत सारे सोप मॉलिक्यूल्स ने एक एग्रीगेशन बनाई, ठीक है ना, दे कम क्लोज टुगेदर एंड दे फॉर्म वन क्लस्टर ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स, राइट, एंड दैट वी कॉल्ड एज माइसल, राइट। अब देखिए होगा क्या, अब ये ऑयल ड्रॉपलेट आपको निकालना है डर्ट, है ना, या तो ऑयल ड्रॉपलेट हो सकता है, या तो आपके पास कोई डर्ट होगी, है ना, जिसको ऑयली नेचर होता है, ऑयली नेचर, या कोई डस्ट होगा, या कोई ग्रीस भी हो सकती है ना, जिसको आपको किसी फाइबर या क्लॉथ से निकालना होगा। यू आर गेटिंग। अब देखिए कैसे निकलेगा। अगर हम देखेंगे ऑयल ड्रॉपलेट के पास आपको सोप का हाइड्रोकार्बन पार्ट आता है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। यू नो कोवेलेंट बॉन्ड इट इज ए वेरी वीक बॉन्ड, है ना, एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड। यहाँ पर आयनिक बॉन्ड और वाटर के बीच आयनिक बॉन्ड होगा, यहाँ पर आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड होगा। किस किस के दरमियान, ऑयल ड्रॉपलेट और हाइड्रोफोबिक टेल के बीच में आपका कोवेलेंट बॉन्ड होगा। What I will do is now, while cleaning the cloth, what we are using, we are doing the agitation, है ना, by means of washing machine or usually we beat the clothes, right, by any stick or etc. So we agitate the cloth. What happens, इससे क्या होगा, जो आपका ऑयल ड्रॉपलेट है ना, ये अटैच किसके साथ, हाइड्रोफोबिक टेल के साथ, तो ये ऑयल ड्रॉपलेट इसके साथ निकल जाता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो आयनिक पार्ट है, इट इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर आयनिक बॉन्ड है, क्योंकि ये टूटने वाला नहीं है, बिकॉज आयनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। तो इसको क्या करता है, यहाँ पर इस सोप मॉलिक्यूल के अंदर जो हम एजिटेशन करते हैं, यहाँ पर एक टेंशन डेवलप होता है, एक टेंशन क्रिएट होता है, एक फोर्स क्रिएट होता है सोप मॉलिक्यूल के अंदर। उससे क्या होता है, उससे जो कोई ऑयल ड्रॉपलेट है ना, ये साथ साथ क्या करता है, इट कम्स आउट फ्रॉम दिस सोप मॉलिक्यूल, ये बाहर आ जाता है, इस ऑयल ड्रॉपलेट इट कम्स आउट, ठीक है ना, एंड एज ए रिजल्ट वन टाइम विल कम, ये जो ऑयल ड्रॉपलेट है ना, इट विल नाउ वॉश दिस वाटर, राइट। ये जो आपका पास ऑयल ड्रॉपलेट है या कोई डर्ट होगी, now it will get dissolved in the water and your water becomes dirty। क्या होगा, इसी जो आपका ऑयल ड्रॉपलेट होगा ना, या कोई डर्ट होगी आपके क्लॉथ में, दैट वाटर तो डर्टी हो गया, साथ साथ हमारा जो मकसद था कि इस फैब्रिक से ऑयल ड्रॉपलेट को निकालना था, ग्रीस को निकालना था, डर्ट को निकालना था, डस्ट को निकालना था, तो हमने इससे जो आपका कपड़ा है आपका साफ हो गया ये कपड़ा, ठीक है ना। तो ऐसे भी हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऐसे भी हो सकती है ना, जब मैं बहुत सारे सोप मॉलिक्यूल्स के वाटर में डिसॉल्व करूंगा, तो वहां पर बहुत सारे क्लस्टर ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स बनेंगे ना, बहुत सारे, इन अदर वर्ड्स वहां पर बहुत सारे माइसल्स बनेंगे। जो ये आपके पास माइसल्स है ना, ये ऐसे भी हो सकते हैं कि जो माइसल्स हैं, दे विल सेटल डाउन इन द वाटर इन द फॉर्म प्रेसिपिटेट, ये बहुत सारा प्रेसिपिटेट बना सकते हैं। हम क्या करेंगे, दिस वी हैव चांसेस ऑफ वेरियस माइसल फॉर्मेशन that will settle down in the water in the form of precipitate। तो इस precipitate को in order to avoid the precipitate formation what we are doing is, अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो माइसल है ना, अगर हम एक माइसल का एक मॉलिक्यूल लेंगे, उसमें आपका CO नेगेटिव ग्रुप है, इसमें बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है, और अगर हमारे पास दूसरा माइसल बना होगा उस सोप सॉल्यूशन में, तो उसका भी होगा CO नेगेटिव, उसमें भी बहुत सारा नेगेटिव चार्ज होगा। सो बहुत सारा नेगेटिव चार्ज CO एक ग्रुप का और दूसरे CO नेगेटिव ग्रुप का बहुत सारा नेगेटिव चार्ज, दे विल रिपल ईच अदर, लाइक चार्ज रिपल ईच अदर। इससे क्या होगा, they will repel each other and as a result these micelles, right, they don't settle down in the water in the form of precipitate, but what they do is they circulate in the water, they form an emulsion, which you will study in the higher classes। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ऑयल एंड वाटर इमल्शन बनेगा, और वी कैन सी एसोसिएटेड कोलाइड, इट सर्कुलेट्स इन दी वाटर एंड एज ए रिजल्ट द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, वी कैन से द प्रोसेस ऑफ क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप कांट बी अफेक्टेड इन दिस वे, राइट, बिकॉज देयर ऑकर्स फॉर्मेशन ऑफ इमल्शन। दिस वाज ऑल अबाउट द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो मैं फिर से यहाँ पर कहूँगा, ऑयल ड्रॉपलेट जब हम किसी क्लॉथ को एजिटेट करते हैं, उससे क्या होगा, जो ऑयल ड्रॉपलेट है ये धीरे धीरे ऑयल ड्रॉपलेट अटैच होता है किसके साथ, ये अटैच होता है हाइड्रोफोबिक टेल के साथ। तो फिर ये ऑयल ड्रॉपलेट इसी हाइड्रोफोबिक टेल के साथ बाहर निकलेगी, मगर चूंकि हाइड्रोफोबिक टेल अटैच किसके साथ है, हाइड्रोफिलिक हेड के साथ। जो हाइड्रोफिलिक हेड है ये अटैच होता है वाटर के साथ। तो जो ये ऑयल ड्रॉपलेट अटैच होगा किसके साथ, हाइड्रोफोबिक टेल के साथ, ये इसके साथ बाहर निकलेगा। फिर ये धीरे धीरे ऑयल ड्रॉपलेट जो हम फोर्स यहाँ पर डेवलप करेंगे सोप मॉलिक्यूल के अंदर बाय मींस ऑफ एजिटेशन, तो एज ए रिजल्ट दिस ऑयल ड्रॉपलेट इट विल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ dirt with the water and as a result you are getting the clean cloth। अब यहाँ पर देखें ना micelle formation, so how you can define a micelle, it is the aggregation of or cluster of soap molecules, right? So I can write here cluster of soap molecules
क्लस्टर ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें आपके पास जो हाइड्रोफोबिक टेल्स होते हैं दे आर इन द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर, है ना, दिस इज ए क्लस्टर, और जो आपके हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं they are present in the interior of that cluster, right? So cluster of soap molecules in which the hydrophobic tails are present in the interior of cluster, and जो आपके ionic ends हैं, these ionic parts, they are present on the surface of the cluster, right? And the ionic ends, we can say your hydrophilic heads, right? And the ionic ends are present on the surface of micelle. You're getting? So this was the definition of micelle. So I will sum up the cleansing action of soap in 1 or 2 sentences. I will write in a micelle, polar end is attached to water, and a non-polar end is attached to dirt, which has got oily nature, full stop. When we rub cloth, what happens? Or when we agitate the cloth, when we rub cloth, micelle removes from the cloth, और जो हम क्लॉथ को एजिटेट करते हैं, जो आपका माइसल है, इट गोज अलॉन्ग विद द डर्ट. सो आई विल राइट व्हेन वी रब क्लॉथ, माइसल रिमूव्स फ्रॉम द क्लॉथ along with dirt. Okay, dirt है, it gets dissolved in the water, and dirt dissolves in water, और जो आपका कपड़ा है ये आपको नया मिलता है ना. एंड द क्लॉथ जो आपको मिलेगा ना, उसको आपको पता है साफ सुथरा आपको क्लॉथ मिलेगा. एंड द क्लॉथ comes out to be clean, and the cloth comes out to be clean. इससे जो आपका वाटर है, क्योंकि वाटर के साथ डर्ट चली गई है ना, इससे आपका जो वाटर है वो डर्टी बन जाएगा. एंड द क्लॉथ कम्स आउट टू बी क्लीन, एंड द वाटर बिकम्स dirty, right? And the water becomes dirty. This was the mechanism of cleansing action of soap. This your soap solution, it's a colloidal solution, it is an associated colloid. colloid की एक प्रॉपर्टी होती है, 9th क्लास में पढ़ा है, it can scatter the light, है ना, आपने Tyndall effect पढ़ा होगा. So this soap solution, it looks like cloudy because it scatters the light. So I will write here soap solution is a colloidal solution. Soap solution is a colloidal solution. So it scatters light. Hence, इसीलिए आपका जो soap solution है, it appears what? Cloudy. Hence soap solution appears cloudy. Question आ सकते हैं short type. Why the soap solution appears cloudy? Because it scatters a large amount of light. That is why it appears cloudy, right? Okay, इससे पहले कि हम सोप्स के कुछ लिमिटेशंस पढ़ें, हमारे पास माइसल्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं.
आपने देखी भी माइसल फॉर्मेशन कैसे होती है। आप एक चीज़ याद रखेंगे, अगर हम सोप सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बहुत कम लेंगे ना तो माइसल फॉर्मेशन नहीं होगी। तो हमें एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन लेनी होगी, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन सोप सॉल्यूशन की लेनी होगी, तब जाके आपका माइसल बन जाएगा, ठीक है ना। वो कंसंट्रेशन सोप सॉल्यूशन की जिस पे आपका सोप सॉल्यूशन माइसल बनाता है, दैट वी कॉल एज CMC, क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन। सो हाउ वी कैन डिफाइन अ क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन? इट इज डिफाइंड एज द कंसंट्रेशन एट विच द सोप सॉल्यूशन फॉर्म्स ए माइसल, राइट। एंड वन मोर पॉइंट रिगार्डिंग इट्स टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर होना चाहिए, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए माइसल को बनने के लिए। दैट टेम्परेचर वी कॉल एज क्रेफ्ट टेम्परेचर, यानी क्रेफ्ट टेम्परेचर पर ही, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही आपका एक माइसल तैयार होगा, ठीक है ना। ओके, सो नाउ लेट अस कम विद द लिमिटेशंस ऑफ सोप, दैट इज अ सब टॉपिक, लिमिटेशंस ऑफ सोप। अगर मैं सोप्स के लिमिटेशन की बात करूं तो पता होनी चाहिए हमारे पास दो किस्म के वाटर्स होते हैं, ठीक है ना। सो फर्स्ट वी हैव वाटर, क्योंकि आपको पता है सोप सॉल्यूशन हमें किस में बनाना है, वाटर में बनाना है ना। सो वी विल फर्स्ट सी दिस वाटर, राइट। यू नो योर वाटर it is mainly of two types. One is your soft water, and second we call as hard water, right. देखिए, रही बात सॉफ्ट वाटर की, सॉफ्ट वाटर में अगर आप देखेंगे ना, सॉफ्ट वाटर किसे कहते हैं, ये वो वाटर होता है जो सोप सॉल्यूशन के साथ इजीली लेदर, फोम या फ्रॉथ बनाता है, ठीक है ना। इसमें अगर आप देखेंगे इसके एग्जांपल्स में आपका इसमें डिस्टिल वाटर आएगा जो आप बाय मींस इवापोरेशन लैब में बनाते हो, और इसमें आपका आ सकता है योर रेन वाटर, रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, राइट। सो वो हो गया सॉफ्ट वाटर, यानी मैं इन अदर वर्ड्स में कहूँ इसमें मिनरल्स नहीं होते, इट इज डीमिनरलाइज्ड वाटर, राइट। सो योर सॉफ्ट वाटर इट इज डीमिनरलाइज्ड वाटर, और ये क्या करता है, सोप सॉल्यूशन के साथ इजीली फोम बनाता है, ठीक है ना। सो हाउ आई कैन डिफाइन ऑफ सॉफ्ट वाटर, शाबाश, द वाटर विच फॉर्म्स लेदर, जिसको हम जाग कहते हैं, बुलबुले, राइट। वी कॉल फोम और फ्रॉथ विद सोप सॉल्यूशन इजीली इज नोन एज, इसी को हम क्या कहते हैं, इज नोन एज क्या बेटा, सॉफ्ट वाटर, राइट। इसमें आपके एग्जांपल्स आएंगे, एक मैंने आपको बोला डिस्टिल्ड वाटर और आपका रिवर वाटर, राइट। तो मैंने आपको कहा इट इज ए फॉर्म ऑफ डीमिनरलाइज्ड वाटर, राइट। इसमें मिनरल्स नहीं होते, डीमिनरलाइज्ड वाटर। नाउ कम टू द हार्ड वाटर, इसका अगर हम हार्ड वाटर की बात करेंगे ना, ये सॉफ्ट वाटर के बिल्कुल अपोजिट होता है। हार्ड वाटर वो वाटर होता है जो इजीली सोप सॉल्यूशन के साथ जाग इजीली नहीं बनाता, ठीक है ना, फ्रॉथ नहीं बनाता। और ये जो आपका हार्ड वाटर है इसमें आपके बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, वी कैन कॉल इट एज अ मिनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ वाटर। तो इसकी अगर हम देखेंगे एग्जांपल्स, आपके रिवर वाटर में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, आपके सी वाटर में, आपके स्प्रिंग में है ना, आपके वेल्स ट्यूबवेल्स का जो आपका पानी होता है उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। किस किस के मिनरल्स होते हैं वो हम आगे देखेंगे, पहले हम डेफिनेशन किसकी लिखेंगे, हार्ड वाटर की। ये वो वाटर होता है जो सोप सॉल्यूशन के साथ लेदर इजिली नहीं बनाता, ठीक है ना। सो द वाटर which doesn't form leather with soap solution easily is known as, इसको क्या कहते हैं बेटा, हार्ड वाटर। और दूसरी चीज, इट इज ए मिनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ वाटर, इसमें मिनरल्स होते हैं, राइट। इट इज मिनरलाइज्ड वाटर, अब देखिए अगर हम केमिकली देखेंगे ना, आपके हार्ड वाटर में कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, वी हैव मिनरल्स, हमारे पास कार्बोनेट आयंस के मिनरल्स हो सकते हैं,
बाइकार्बोनेट आयंस के मिनरल्स हो सकते हैं, राइट। सल्फेट आयंस के मिनरल्स हो सकते हैं, हमारे पास क्लोराइड्स के मिनरल्स हो सकते हैं। किसके? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के, ठीक है ना, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। यानी वो हॉट वाटर में आपका या तो कैल्शियम कार्बोनेट होगा या मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा या कैल्शियम बाइकार्बोनेट होगा या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होगा या कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, और दिस योर हॉट वाटर इट कंटेन्स कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। यानी अगर ये वाले आयंस और ये वाले मेटल आयंस होंगे ना, तो हम उस वाटर को क्या कहेंगे? हार्ड वाटर। तो इसकी एग्जांपल्स मैंने आपको कहा, एग्जांपल्स में हम रिवर वाटर लेंगे जिसमें बहुत सारे, जिसमें आपके ये मिनरल्स होते हैं, ठीक है ना। सो आई कैन राइट इन द एग्जांपल्स रिवर वाटर वी हैव, सी वाटर आल्सो कंटेन्स लॉट ऑफ मिनरल्स ऑफ दिस कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। वी हैव स्प्रिंग वाटर, वी हैव वेल्स, जो पानी वेल्स में होता है वो भी आपको कौन सा होता है? हार्ड वाटर। या ट्यूबवेल्स की बात अगर करेंगे, या जो पानी आपके लेक्स में होता है वो भी आपका हार्ड वाटर होता है, राइट। ओके, नाउ वी विल मूव टू द लिमिटेशंस ऑफ सोप, ठीक है ना। तो आपका हार्ड वाटर इट विल रिएक्ट डिफरेंटली विद दिस सोप सॉल्यूशन एंड योर सॉफ्ट वाटर इट विल रिएक्ट डिफरेंटली विद योर सोप सॉल्यूशन। तो आपने देखा कि हमारे पास वाटर के दो टाइप्स हैं ना, एक आपका हार्ड वाटर है, दूसरा आपका सॉफ्ट वाटर है। रही बात सॉफ्ट वाटर की, वो आपको पता है वो इजीली लेदर प्रोड्यूस करता है आपके सोप सॉल्यूशन के साथ। मगर अगर हम बात करेंगे ना हार्ड वाटर की, इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर वॉशिंग क्लोथ्स विद हार्ड वाटर। क्यों नहीं है? देखेंगे इसका रीजन कि हमें अपने कपड़ों को क्यों हार्ड वाटर में वॉश नहीं करना चाहिए। वी विल सी दैट। सो आई विल राइट वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोप इज नॉट सुटेबल फॉर वॉशिंग क्लोथ्स इन हार्ड वाटर अब देखेंगे क्यों। देखिए, while washing the clothes there occurs reaction between your hard water and the soap solution। तो पहले मैं क्या करूंगा, I will take the soap, right? I will take, for example, I will take this soap C17H35 COONA, right? What is this? इसके बारे में हमने बात की है, that is good, that is sodium stearate, right? This is your sodium stearate। मैं क्या करता हूँ, इस सोप को, इसको मैं पानी में डिजॉल्व करता है। सो आई विल टेक द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोप, राइट। उसके बाद उसको मुझे ट्रीट किसके साथ कराना है, व्हाइल वॉशिंग क्लोथ्स हम किस किस का सहारा लेते हैं, एक आपका सोप होता है, दूसरा आपका हार्ड वाटर होता है ना। हार्ड वाटर में क्या चीज़ होती है, मैंने अभी कहा, इसमें आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस होते हैं ना, किसके? कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स, क्लोराइड्स के, है ना। सो आई विल टेक फर्स्ट, वी हैव फॉर एग्जांपल कैल्शियम, राइट। आपको पता है कैल्शियम पे पॉजिटिव +2 होता है ना, इट इज डाइवेलेंट, दिस मेटल इज डाइवेलेंट। अब क्या होगा, अब देखिए, इफ आई विल टॉक ऑफ दिस सोडियम स्टेरेट, मगर मैं कैल्शियम आपको पता है आई विल आल्सो टेक इट इन एक्वस फॉर्म, राइट, क्योंकि ये वाटर में मिला होता है, कैल्शियम आयंस वाटर में होते हैं। इफ आई विल टॉक ऑफ दिस सोप मॉलिक्यूल, इट विल डिसोसिएट राइट इन द वाटर इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस लाइक दिस, नेगेटिव पार्ट एंड दिस विल बी पॉजिटिव पार्ट, राइट। फिर से हम वही करेंगे, जो आपके पास पॉजिटिव पार्ट होगा, है ना, इट विल गो टू द नेगेटिव पार्ट, राइट। सो व्हाट दिस कैल्शियम विल डू, इट विल डिस्प्लेस द sodium metal, right? You are getting? So here if you will see, it is simply a type of displacement reaction. While balancing any chemical reaction in chemistry, we have to use two types of laws. We have to take care of two types of laws. One we call as law of conservation of mass, जिसके हिसाब से आपकी जो नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड वो बराबर होने चाहिए प्रोडक्ट साइड के। दूसरा जो लॉ है दैट वी कॉल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, राइट। चार्ज भी LHS साइड और RHS साइड, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड बराबर होना चाहिए। आइए देखेंगे, अब यहाँ पर चार्ज को बैलेंस करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो कैटाइन है इस पर +2 चार्ज है और जो आपका एनायन है इस पर नेगेटिव चार्ज है, राइट। तो +2 आपको पता है न्यूट्रलाइज होगा -2 से। सो व्हाट यहाँ पर आपके पास -1 है, तो इसको मुझे -2 बनाना है।
So how I can make this -2? What I will do is I will take 2 moles of what? Soap, right? इसे आपके पास ये -2 चार्ज बन जाएगा, and this -2 charge it will get neutralized by +2 charge, है ना? बहुत आसान. So what you will get is you will get 2 times, or I can write it like this, C17 खोल के अगर लिखेंगे C17 H35, then we have COO, right? Then we have minus, you're getting. अब सोडियम की जगह क्या आ गया? कैल्शियम, right? So here it is your calcium 2 positive, और आपके साथ क्या है शाबाश में? आपके पास we are taking 2 moles of this stearate ions, right? So these are your stearate ions, C17 H35 COO negative. You are getting. प्रोडक्ट देख रहे हो ना, इसका insoluble कर्डी white precipitate बन जाता है, जिसको हम सिकम कहते हैं, राइट? सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर दिस रिएक्शन इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ insoluble precipitate, right? We can say it is a sort of precipitation reaction in which the precipitate gets formed. So it is white curdy precipitate, right? White curdy PPT we are getting, and in chemistry we call it as scum, right? We call it as scum. और क्या चीज निकलेगी शाबाश? और अगर हम देखेंगे आपके पास we will get 2 sodium ions here, right? So twice Na positive ions which will be in the aqueous form, right? So this will be also in the aqueous form. रिएक्शन में क्या हुआ है, जो आपके पास कैल्शियम आयंस हैं जो थे ना हार्ड वाटर में, so these calcium ions these were present in hard water, है ना? These were present in hard water. कैल्शियम आयंस ने क्या किया, जो सोप सॉल्यूशन में जो आपके सोडियम आयंस थे उनको डिस्प्लेस किया, and it led to the formation of one compound which has insoluble precipitate, and we call that insoluble or curdy like precipitate as scum, right? Along with the formation of 2 sodium ions. तो एक रिएक्शन देखेंगे ना जिसे आपकी scum formation और निकल के आएगी. For example, I will take the sodium stearate, right? C17 H35 COO Na, right? This is your sodium stearate, and I have to react it with the hard water. अब hard water से क्या चीज आएगी? मैग्नीशियम आएगा. आपको पता है, मैंने आपको भी कहा आपके हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होते हैं? क्लोराइड्स होते हैं, सल्फेट्स होते हैं, कार्बोनेट्स होते हैं और बाइकार्बोनेट्स होते हैं ना. तो हम क्या करेंगे, इसको हम एक्वस फॉर्म में लेंगे, राइट? और मैग्नीशियम भी आपको यहाँ पर एक्वस फॉर्म में है ना. इन एक्वस सॉल्यूशन दिस सोडियम स्टीरेट इट विल डिसोसिएट इनटू योर स्टीरेट आयंस एंड द सोडियम आयंस, है ना. And this magnesium आपको पता है what this magnesium will do, it is a positive part, right? It will go to the negative part, it will displace the sodium ions in the soap solution. तो यहाँ पर 2+ चार्ज है, तो इसको -2 चार्ज न्यूट्रलाइज करेगा, है ना. सो यहाँ पर एक ही नेगेटिव चार्ज है, तो मुझे यहाँ पर -2 बनाना है, इसलिए मैं क्या करूँगा, I will take 2 moles of what? Sodium stearate here, right? So what you will get is, it is very easy. What you will get? You will get C17 like this, C17 H35, then we have COO, we have 2 moles of stearate ions, right? So 2 moles here, then we have magnesium, right? इसका क्या बनेगा? Insoluble precipitate, है ना. So this is your insoluble precipitate, insoluble PPT, white curdy like precipitate, इसको हम scum कहते हैं, along with the formation of 2 Na positive ions in aqueous form. You are getting? So this these 2 reactions they explain the scum formation in the hard water. देखिए अभी scum करता क्या है, अगर हम scum की बात करेंगे ना, फॉर एग्जांपल अब आप कपड़े को धो रहे हो हार्ड वाटर से, हार्ड वाटर में आपका मैग्नीशियम या कैल्शियम आयंस है ना, वो क्या करेंगे, वो आपके सोप सॉल्यूशन में से आपके सोडियम आयंस को रिप्लेस करेगा. उससे क्या हो जाएगा, इससे आपके पास एक कंपाउंड बनेगा, वहां पर स्कम फॉर्मेशन होगी. दिस स्कम इट स्टिक्स टू द क्लॉथ, कपड़ों पे स्टिक होता है, और जब ये कपड़ों पे स्टिक होगा इससे क्या होगी, हमारी जो क्लींजिंग एक्शन होगी ना सोप की, वो इफेक्ट पड़ जाएगी. And as a result, a large amount of soap gets wasted, right? That we call as wasting of soap, right? It is recommended that we should not wash our clothes with the soap in hard water, right? Okay, my dear students, now we will take the other part of this video, that is we will discuss about the detergents, right?
If I will talk of the detergents, the basic difference between soap and the detergents. These detergents, they are also known as soapless soaps. Why they are called as soapless soaps? Because जो सोप का जो स्ट्रक्चर होता है ना और जो डिटर्जेंट का स्ट्रक्चर होता है वो लगभग सेम होता है, खाली जो डिफरेंस होती है वो आयनिक पार्ट में डिफरेंस होती है। तो कैसे होती है आयनिक पार्ट में डिफरेंस? जो आपका सोप है आपको पता है कि उसमें आपका COO ग्रुप होता है ना, कार्बोक्सिलेट आयन इसमें आपका होता है, मगर जो आपके डिटर्जेंट्स हैं इनमें आपका सल्फोनिक एसिड होता है, राइट, SO3H ग्रुप यू आर गेटिंग। तो इनमें आपका सल्फोनिक ग्रुप एज फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए इनको सोपलेस सोप्स कहते हैं, बिकॉज दे डोंट रिजेंबल with the structure of soaps, right? They are somewhat different in the sense that they contain SO3H group instead of carboxyl group, right? So how I can define detergents? Then we will see. This detergent. A detergent is the sodium salt of. A detergent is the sodium salt of long chain of. इसमें भी long chain होती है soap की तरह. लॉन्ग चेन ऑफ, उसमें आपका था, उसमें आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स थे, फैटी एसिड्स थे सोप्स में, मगर यहाँ पर आपके पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है। सो ए डिटर्जेंट इज द सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, या इसमें लॉन्ग चेन होती है अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट की, और ऑफ ए लॉन्ग चेन ऑफ alkyl hydrogen sulfate, alkyl hydrogen sulfate. Now I will draw the structure of one detergent here. This one. Then we have a benzene ring, that is like this. Then we have, these are your pi bonds. Then we have functional group like this. इससे पहले कि हम इसकी नेमिंग करें, यहाँ पर अगर आपको पता होगी, मैंने आपको अभी कहा जो आपके पास डिटर्जेंट है इनमें आपका कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? सल्फोनिक एसिड। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बजाय इनमें सल्फोनिक एसिड होता है, ठीक है ना। द फॉर्म ऑफ सल्फोनिक एसिड लाइक दिस, SO3H, राइट। this one, this is the functional group for what? सल्फोनिक एसिड। अगर मैं क्या करूं सल्फोनिक एसिड में से, अगर मैं इसमें से एक प्रोटॉन को रिमूव करूं, एक प्रोटॉन को रिप्लेस करूं, ठीक है ना, और किसे रिप्लेस करूं? बाय मींस ऑफ सोडियम आयन, यू आर गेटिंग। सो व्हाट आई विल गेट इज, आई विल गेट SO3, हाइड्रोजन की जगह क्या आएगा? सोडियम, राइट। SO3 माइनस, देन वी हैव SO3 minus, then we have Na positive. So it is like this, SO3 minus Na positive, right? So it is a derivative of, so it is sodium salt of sulfonic acid. Now how we can name this? This is your sodium, this name will be sodium. How many carbon atoms are in the long hydrocarbon chain? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. And for 12 carbon atoms we use the root word, that is dodec. So its name will be sodium dodec. Then this is a long alkyl group, right? Long alkyl chain. So for that I will add yl, right? So its name will be sodium dodecyl, then benzene, and then we have sulfonate, right? So its name will be sodium dodecyl benzene sulfonate. You are getting? So this is one of the example of what? Detergent. तो खाली डिफरेंस आपको समझ में आई सोप और डिटर्जेंट में। सो उसमें क्या होता है, वहां पर कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, मगर यहाँ पर आपका सल्फोनिक एसिड वाला ग्रुप होता है। तो ये हो गई बात किसकी? बेंजीन सल्फोनिक एसिड की, है ना। नाउ आई विल टॉक ऑफ दिस अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। इसकी भी एक एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पे। इफ आई विल टेक इट्स एग्जांपल like this, then we have here we have double bond O, then we have double bond O,
and here we have O negative, then we have Na positive. You know सल्फर के पास आपके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, 1 2 3 4 5 and 6, राइट. इट्स नेम सोडियम, इसको हम कहते हैं SDS, राइट, सोडियम. एंड हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर इन द पैरेंट चेन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. So for 12 carbon atoms we use the root word, that is dodec. And we know then we have the long alkyl chain, for that I will add the word "-yl", so its name is sodium dodecyl. And you know this is the sulfate, SO4 2 minus, right? So sodium dodecyl sulfate, इसको मैं सिंपली शॉर्ट में क्या लिख सकता हूँ? SDS, ठीक है ना, SDS. या कुछ बुक्स इसको और एक नाम लिखते हैं, इसका जो दूसरा नाम है that is सोडियम lauryl sulfate, right? So its name will be sodium lauryl sulfate. You are getting? So this was the example of detergent which consists of long chain of alkyl hydrogen sulfate. तो एक चीज आप अगर हम देखेंगे ना एडवांटेज डिटर्जेंट्स की, यू नो दे रिएक्ट वेरी क्विकली विद द हार्ड वाटर. आपको मैंने कहा था कि जो आपके पास सॉफ्ट वाटर है, तो मैंने आपको कहा था कि जो आपके पास सोप से दे डोंट रिएक्ट इफेक्टिवली विद द हार्ड वाटर, मगर जो आपके डिटर्जेंट्स हैं दे रिएक्ट इफेक्टिवली विद द हार्ड वाटर, दे डोंट फॉर्म द इनसॉल्युबल स्कम. यू नो क्यों नहीं बनाते? तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे, मैंने आपको कहा था कि हार्ड वाटर में आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट्स होते हैं. नो डाउट कि यहाँ पर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस जो है ना वो रिएक्ट किसके साथ करेंगे? सोडियम आयन के साथ, और ये सोडियम आयन रिप्लेस हो सकता है. मगर जो आपके पास ये SO3 माइनस ग्रुप है ना, दिस SO3 माइनस ग्रुप, इट विल नॉट अलो दिस कैल्शियम साल्ट और मैग्नीशियम साल्ट विच इज प्रेजेंट इन द हार्ड वाटर टू मेक द इनसॉल्युबल precipitate which is known as scum. तो यहाँ पर insoluble precipitate scum, यहाँ पर scum formation नहीं होती है. When there occurs no scum formation, so we can say our detergents they are more efficient as compared to our soaps, right? जो अगर हम मैकेनिज्म की बात करेंगे डिटर्जेंट्स की, सेम मैकेनिज्म फॉलोज द डिटर्जेंट. मैकेनिज्म हमने सोप्स के बारे में पढ़ा था ना, वही मैकेनिज्म इन डिटर्जेंट्स का भी होता है. ठीक, देखिए. Okay, this was all about the soaps and detergents. One question can be asked, 5 marker question can be asked that distinguish between soaps and detergents. ये आपके लिए बेटा होम असाइनमेंट रहेगा. आप सोप्स और डिटर्जेंट्स के दरमियान जो भी आपकी पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस आएंगे वो आप अपने नोटबुक पे करेंगे, ठीक है ना. और इवन अगर आप कमेंट बॉक्स में भी जो आपके वीडियो के नीचे दिया गया है कमेंट बॉक्स, उसमें भी अगर आप सोप्स और डिटर्जेंट्स के डिफरेंसेस लिखोगे, डेट विल बी आल्सो गुड, राइट. दोज फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम इन द यूट्यूब, let them subscribe, like and share my channel to other comrades so that they can also get benefited from my video lecture. Thank you very much for watching today's video.